Today we are going to discuss about the Nelson Mandela Law Part 2. This lesson is about the day, which day oath taking ceremony that was taken place in America. Okay. After elections, the party of Nelson Mandela won there, and he was elected as the president. He invited leaders from all over the world that day in his oath-taking ceremony. And what is apartheid? Apartheid in this lesson means the policy that was used by the Britishers, गोरे लोगों के द्वारा, against the South Africans. They did not respect South African people. Why? Because they think that these are of different color of the skin. To make differentiation on the base of the color of skin is called apartheid. And the second word is autobiography. Autobiography means Atmkatha, the book written by himself, by anyone. That is autobiography. And the inauguration ceremonies, they are century, democracy. Democracy is the government elected by people, in which elections taken place either by 2 years, after 2 years, or by 3 years, or by 5 years. That's a democracy. India is a democratic nation. Okay. Amphitheater is the building where this oath-taking ceremony was going on in this lesson. Dignitaries का मतलब different celebrities from the world that were present on that day. Dignitaries उनको बोला था यहाँ पे. Oppression, ये word है very important. Oppression का मतलब क्या है? The Britishers oppressed the Negro people there. Okay, that activity is called oppression. And jubilant on the oath-taking ceremony in the America, all the people all the citizens of America, they were in jubilant mood that day. कौन से दिन में jubilant mood थे? आप जिस दिन oath-taking ceremony हो रही, ठीक है? वर्ड मीनिंग से हम डिस्कस कर रहे हैं सर, है ना? तो ceremony कोई है, oath-taking ceremony was going on. Races in America, mainly there are two types of people living, or you can say there are two races. One is the white man, and second is the black man. Okay. Jati. Overwhelmed. On the oath-taking ceremony of the Nelson Mandela, all the citizens of America, they were overwhelmed by the emotions, because after struggle of many years, the Negroes people are equal in status with the white ones. क्योंकि बहुत होता है, अमेरिका में तो आज भी होता है, बहुत पहले भी होता है ये डिफरेंशिएशन. इसको डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं, ठीक है? अपार्थाइड के नाम डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं. इसको प्रेजुडाइज भी बोला जाता है. वर्ड आया ना प्रेजुडाइज? यस सर. प्रेजुडाइज का मतलब होता है आप अपने माइंड में सोच बना लिया कि पूर्वग्रह लोग क्या है, बुरे सोच लिया, मतलब ग्रह सारे लोग ऐसे हैं. वो प्रेजुडाइज क्या है? पहले से सोच बना लिया, पूर्व ही आग्रह बना लिया. पूर्वग्रह प्लस आग्रह, पूर्वाग्रह, पहले इस आपने दिमाग में बना लिया. वहां पहुंचे नहीं अभी मीनिंग पर. ओवरवेल्म, इमेजिनेशन, कल्पना, ह्यूमैनिटी. देयर इज थ्रेट टू ह्यूमैनिटी इन साउथ अफ्रीका. क्यों? क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन था. व्हाइट पीपल और ब्लैक पीपल से बीच में डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव. Immigrant word, impolite. आज जब oath-taking ceremony हो रही थी, तो Nelson Mandela was saying that today is the history-changing day है. और आज की जो शाम है, उस समय ऐसा मौसम हो रहा होगा, तो ट्यूबलाइट वर्ड यूज किया था. मतलब क्या है? ऐसा समय जहाँ रात होने वाली है, और दिन जो है छिपने वाला है, ठीक है? वो यहाँ पे डान एक वर्ड यूज किया था. डान क्या है? डान कहता है आज एक नया सिस्टम का उदय होगा साउथ अफ्रीका में. साउथ अफ्रीका में नया सिस्टम का उदय होगा. डान ऑफ द न्यू सिस्टम इन साउथ अफ्रीका. फ्रॉम टुडे ऑल द पीपल आर इक्वल इन साउथ अफ्रीका.
ठीक है, आप कहेंगे ये कैसा है, समझ में नहीं आ रहा है ऐसा, ये ऐसा इनइक्वालिटी भी हो सकती है। ठीक है, इनइक्वालिटी का देखो 1960 में जब मिल्खा सिंह खेलने गया था वहां पर, तो वहां पर एक प्लेयर और था बॉक्सिंग प्लेयर 1960 में, उसने गोल्ड मेडल जीता था बॉक्सिंग में। पहले मैंने कहानी सुनी तो उसका नाम कैसियस करे, +2 के अंदर उसका चैप्टर है इंग्लिश में, +2 में आप जाएंगे तो उसका इंग्लिश में चैप्टर है कैसियस करे। वो मेडल लेके आया अमेरिका के लिए, परंतु वो क्या था, अफ्रीकन था, वहां रहता था, तो उसके साथ फिर भी भेदभाव होता, तो गोल्ड मेडल उसने बॉक्सिंग में जीता 60 किलो गेम में। गोल्ड मेडल जीतने के बाद उसको सम्मान नहीं मिला, तो आप और हम आम लोगों को सम्मान क्या मिलता होगा उस समय। तो उसने अपना गोल्ड मेडल क्या है वहां की ओहायो नदी में फेंक दिया। ठीक है, वो लेसन है। तो उसने अपना नाम भी बदल लिया बाद में, कैसे करे से वो क्या है, अपना धर्म भी बदल लिया था उसने, नाम बदल लिया, देश भी छोड़ दिया था उसने उस समय पे। तो इतनी अपार्थाइड के कारण इतना डिस्क्रिमिनेशन होता था, अभी भी है काफी, इतना ज्यादा नहीं है पर एग्जिस्टेंस, मतलब देयर इज ए डिफिकल्टी टू एग्जिस्टेंस इन सच एन एनवायरमेंट। अगर ऐसा माहौल मिल जाए तो क्या आप एग्जिस्ट कर पाएंगे, आप अपना अस्तित्व बना पाएंगे क्या, जहाँ पर इतना भेदभाव हो? नो। ठीक है, जैसे कई घरों में लड़का और लड़की में भेदभाव होता है, तो आप एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। एग्जिस्ट का मतलब जिंदा रहना। ठीक है, एग्जिस्टेंस ये नाउन है। ओके, एग्जिस्ट इज वर्ड, वर्ब से डॉन, besieged मतलब चारों तरफ से घेरना हुआ। ठीक है, द पुलिस besieged द रिवोल्यूशनरीज, ठीक है, क्रांतिकारियों को घेर दिया। ठीक है, गैदर, there are many farmers gathered in the ground for the demonstration। बोल सकते हैं सैंडस्टोन की वो बिल्डिंग बनी हुई थी, सुपरमेसी, there was supremacy in the America before Nelson Mandela's president rule। इंडिया में भी था, जैसे अटमन अकॉम्पनी sworn in ceremony was there taking place, obey and uphold। Nelson Mandela says that I will obey and uphold the constitutions। दो कॉन्स्टिट्यूशन में बातें दी है ना, उसको मैं बनाए रखूंगा, उसके लिए यूज हुआ था। अब ओबे एंड अपहोल्ड, आप भी जैसे स्कूल में आएंगे तो यू कैन से दैट वी ओबे एंड अपहोल्ड दी नॉर्म्स ऑफ द स्कूल। मतलब स्कूल में जो नॉर्म्स है, जैसे ड्रेस पहन के आना है, ठीक है, नाम पर आना है, ये ज्यादा, तो आप ओबे एंड अपहोल्ड करेंगे, इसको पालन करना। तो देयर आर मेनी डिवोटीज आई saw at मनसा देवी मंदिर। ठीक है, they are so fully devoted that कोई तो वहां पर नाचने लग जाता है। आप पीछे क्लास कर देख लो, तुम्हारा हाथ क्लास पड़ी है। well-being, for the well-being of the humans, कई NGOs चलाते हैं, है ना। well-being का मतलब भलाई। आप उसको वर्ड को देखिए, उसके साथ जुड़िए, ताकि आप उसको लेसन में यूज कर सकें। रिपब्लिक, इंडिया इज ए रिपब्लिक डेमोक्रेटिक, भारत एक क्या है, गणतंत्र प्रजातंत्र। ओके, ग्लोरी, वी फील ग्लोरी when we see or when we hear about the India motherland, है ना, गर्व महसूस करते हैं आप। All the citizens in India are fully liberated to do anything। Liberate का मतलब आजाद, स्वतंत्र है, liberty। Extraordinary, असाधारण। all the students are extraordinary, सभी असाधारण है, क्योंकि भगवान ने सभी को यूनिक बनाया है। बट क्यों आप अच्छा नहीं कर पाते हैं? बिकॉज यू आर नॉट फुली कॉन्सेंट्रेटेड। ओके, जब आप फुली कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएंगे तो यू कैन डू वेल, आउटक्लास द रोबर्स, आउटक्लास बाय द लोकल गवर्नमेंट। ओके, प्रतिबंध करते हो उनको आने से यहाँ पर ना, रोबर्स मतलब चोरों को, प्रिविलेज। इन द एंशिएंट फ्रांस the nobles have privileges to not pay the taxes। फ्रांस की क्रांति से पहले नोबल्स को क्या है,
पीछे से निकालते हुए आपको कर नहीं देना। पर कौन दे रहा था वहाँ पे? पुअर पीपल दे रहे थे, मध्यम वर्ग भी दे रहे थे, मिडिल क्लास लोग वर्किंग टैक्सीज, तभी तो क्रांति हुई थी, है ना? 1789 16 जुलाई बास्टिल डे करके इसको फ्रांस के आज भी मनाते हैं। फ्रांस वाले आज भी वो स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं उसको। 16 जुलाई मुझे अच्छा ध्यान आ रहा है, पता नहीं अब तक। अब होस्ट, when a guest come in your house, you are host. Okay, that is guest, you are host. Distinguish. Write some lines to distinguish between living and non-living objects. Distinguish को वहाँ भी यूज करते हैं। I saw a distinguished personality. ठीक है, ये मल्टी यूज होता है distinguish। डिग्निटी, सम्मान, एस्टीम, डिग्निटी, सम्मान। The girls should be feel secure, and they should feel that their dignity should be respected in classroom when they attend class. Dignity मतलब सम्मान, respect कह सकते हो आप, है ना? ठीक है, रिस्पेक्ट लिख सकते हो आप इस कॉपी पे, ये मेरी कॉपी है, इस पे लिखते रहो, पेन पेंसिल से ओवरराइट करते रहो, पास जितना भी लिखना है। सिंपल वर्ड्स में यूज करता हूँ ना, अपना पेन हाथ पेंसिल हाथ करता हूँ, उसको लिखते रहो। इतना सुंदर बनाने के लिए आपको मैक्सिमम वर्ड्स सीखना है, ठीक है? आपको मैंने वो सिस्टम भी बताया, तो आप चला दिया करो पेन को, ठीक है ना? जैसे मैंने डिग्निटी का रिस्पेक्ट बोला था, एस्टीम भी है, रिस्पेक्ट, एस्टीम, ओके, सम्मान है। इमांसिपेशन कोई है, मुक्ति, इमांसिपेशन क्या है? फ्रीडम, लिबर्टी, देखना है ना? किसका सर? फ्रीडम, लिबर्टी मींस इमांसिपेशन। डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। टू डिस्क्रिमिनेट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ एनीथिंग, या और टू डिस्क्रिमिनेट ए गर्ल और ए बॉय, ओके? Discriminate a male and female. To discriminate on the base of working or jobs, on the base of jobs. यहाँ पर स्कूलों में होता है डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है? बच्चे होते हैं, आपको क्या बताएं डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है? समाज में हर जगह डिस्क्रिमिनेशन, फिर भी हमें आत्मविश्वास को देना पड़ता है, हर जगह डिस्क्रिमिनेशन। जैसे बात कदम रखोगे डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा, है ना? क्योंकि देखो, पानी भरने के लिए लड़की की फोटो मिलेगी वहाँ पे, क्या लड़के पानी नहीं भरते? किताबों में भी है, देखते हैं ना? किसान जो है वो किसान एक आदमी को दिखाते हैं, तो दैट इज आल्सो डिस्क्रिमिनेशन। किसान की औरत नहीं हो सकती, ठीक है? कोई भी हो सकता है कि ये कहीं रिटर्न में थोड़ी है कि वे किसान की फोटो में आपको ले रहे हैं। अच्छा, द रेन ड्यूरिंग द रेन ऑफ द ब्रिटिशर्स देयर वाज डिस्क्रिमिनेशन इन ऑस्ट्रेलिया। रेन का मतलब क्या है यहाँ पे? स्पेक्टिकुलर एरे। यहाँ पे क्या स्पेक्टिकुलर एरे? शानदार नजारा था। व्हेन द जेट फ्लाइट वर flew over the inauguration ceremony. They were spraying what colors of the flag of South Africa that day. उसके बारे में जैसे हमारे भारत में देखा होगा डेमोन्स्ट्रेशन, चैवरन यहाँ पे वही है, जब वो जा रहे थे ना फ्लाइट्स, तो वो ऐसे आकार में सारे फ्लाइट जेट फ्लाइट्स इस आकार में थे, जैसे पक्षी उड़ते हैं। यस सर। ठीक है, पक्षी जब इस आकार में उड़ रहे हैं तो वो क्यों उड़ रहे हैं? उसके पीछे साइंस है कि सभी पक्षी जब इस आकार में उड़ते हैं तो जो हवा का जो प्रेशर होता है उसके ऊपर कम लगता है, तो आराम से उड़ पाते हैं सारे पक्षी। हमेशा अधिकतर इस लाइन में उड़ते हैं, ठीक है?
प्रेशर ज्यादा नहीं झेलना पड़ता। अगर सारे ऐसे उड़ेंगे तो बहुत प्रेशर लगेगा, ठीक है। तो अगले वाले पे सबसे ज्यादा प्रेशर लगता है, अगले 3-4 तो वो जगह चेंज कर सकते हैं। पक्षी हमेशा एक पक्षी नहीं रहता है, जगह चेंज करके अलग अलग जगह वो अलग का ऐसे पक्षी उड़ते हैं, ठीक है। तो वो भी कितने समझदार है, साइंस में बात करते हैं, कम मत समझाओ, ठीक है। In human pancreatic generations, fertility, unintended wisdom, you should work according to your wisdom. That is from the wisdom member of humanity, activist. Fire extinguishers are used. Extinguishers मतलब जो फायर एक्सटिंग्विशर आग बुझाते हैं ना, यस सर, फायर ब्रिगेड। एक्सटिंग्विशर इज अ नाउन, एक्सटिंग्विश इज अ वर्ब, फायरमैन। ओब्लिगेशंस, व्हाट ओब्लिगेशंस विद व्हिच पेरेंट्स आर बाइंडिंग। पेरेंट्स कौन सी ओब्लिगेशन से बाइंड है? दे शुड लुक आफ्टर देयर चाइल्ड। एंड आपकी क्या ओब्लिगेशंस हैं? यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। और दूसरी ओब्लिगेशंस क्या है? ए टीचर शुड टीच इन द क्लासरूम और गाइड स्टूडेंट्स। ये ओब्लिगेशंस है, उसके पास रहता है कंपल्सन, इनएविटेबल है ना। कई कहते हैं कि ये बात तो होनी है भाई, जरूर होगी, तो दैट इज समथिंग इनएविटेबल। आप स्कूल में आओगे तो सर जरूर पढ़ाएंगे अगर वहां पर है तो। इट इज इनएविटेबल दैट the study will not take place when the sun is there, है ना। Rebellion, all the revolutionaries were the rebellion, उनको विद्रोही बोल सकते हैं। जैसे फ्रांस की क्रांति में कृषक जो थे और मिडिल क्लास लोग थे वो रेबेलियन थे, वहां पे विद्रोही अगेंस्ट द किंग। लुइस ओब्लिगे अगेंस्ट थे वो लोग, तो उनको क्या बोल सकते हैं? रेबेलियन। रेबेलियन वहां पर जो विरोध करते, विद्रोही। रिबल भी कहते हैं इनको, रिबल, REBEL भी कहते हैं, रिबल। फुलफिल नहीं करते कंडीशंस को ना। नेता भाग शुरू में तो बहुत वादे करते हैं, जब बन जाते हैं तो अपने फुलफिल नहीं करते। यस सर, कुछ वादा अपना निभाते नहीं है, पूरा नहीं करते। वादा निभाना इज फुलफिल योर प्रॉमिस। अबाइड बाय, अपने यू शुड अबाइड बाय योर प्रॉमिसेस। सेम यही कस्टम्स दोबारा से जो पढ़ रहे हैं सारी चीजें ना। अच्छा, तो इस लेसन में मेन इंपोर्टेंट चीजें पढ़ लेते हैं एक बार दोबारा से, जो मैंने वीडियो वहां बनाई थी। तो ये तो वर्ड मीनिंग्स था। अब क्या है लेसन में मेनली क्या है? इस लेसन इज अबाउट द इनॉग्रेशन सेरेमनी। आप एक बार इसको घर जाके देख लेना और लिख के देखो तो याद रह जाएगा। अगर आज मैंने पढ़ाया फिर आप उसको छेड़ा दें, एक महीने बाद छेड़ा तो क्या पढ़ाया था सर ने, कुछ याद नहीं रहेगा। अब तो वर्ड्स आपके दिमाग में रह जाएंगे, सर कैसे होगा। एक बार you once see that video which I prepared for you, that is the PPT, ठीक है। वहां भी यही है कि this lesson is a part of autobiography of Nelson Mandela, of which day of the inauguration ceremony of the president. That day he was taking oath. Leaders from all the world was there invited by him, okay, and he gave speech there, and the part of speech is the part of this. The speech that he gave on that day is given in this lesson. ठीक है, क्या स्पीच दी, क्या क्या बोल रहा था नेल्सन मंडेला, ठीक है। तो नेल्सन मंडेला was elected the president of South Africa that day. उसमें क्या इनॉग्रेशन सेरेमनी वाज टेकिंग प्लेस इन द बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। प्रिटोरिया हियर इज कैपिटल, प्रिटोरिया इज कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की कैपिटल वो है जोन्सबर्ग। क्या सर? जोन्स? हाँ, जोन्सबर्ग भी कैपिटल है। जोन्सबर्ग, ओके। 3 कैपिटल है, प्रिटोरिया, जोन्सबर्ग, एक और मुझे ध्यान नहीं आ रही है, बताएंगे। 3 कैपिटल है साउथ अफ्रीका की। तो मैनी लीडर्स वर प्रेजेंट किया,
on that day. On that day, national anthems of the black and white were sung by the people. देखो दोनों नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट चली है उस दिन. नेशनल एंथम ऑफ बोथ व्हाइट एंड ब्लैक, चलिए दोनों का गाया गया उस दिन. ठीक है, ये आपने लेख याद करना है. Because they want what the people want. Why they sung the national anthem of both the white and Negroes? Because they want the end. This kind, the end of apartheid policy. They want the end of discrimination. Okay? They want the end of prejudice. ये मेन वर्ड है, यहाँ पे 3 वर्ड है इस लेसन के, याद रखना. apartheid, discrimination. अगर आप ये यूज करेंगे ना इनको तो आपको नंबर मिलेंगे इस लेसन में से आप यूज करते हैं. क्योंकि चेकर क्या देखता है, जिस बच्चे के पास कितना सब दीपक माले यही लिखा होता. कोई नहीं. Three words that may be used in this lecture is apartheid, नस्ल भेदी, ठीक है, और डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव है, एंड थर्ड इज द प्रेजुडाइस. आपके वर्ड में नेक्स्ट नहीं है वर्ड. प्रेजुडाइस का मतलब है पूर्वाग्रह से दिमाग में लगा देना. ये कोई नहीं. ठीक है, these are the 3 words. तो मैं यहाँ पर था कि दैट डे इनॉग्रेशन सेरेमनी में एंथम्स किनके गाए गए, दोनों के. क्यों गाए गए एंथम्स दोनों के? बिकॉज द सिटीजन ऑफ अफ्रीका दे सफर से लॉट, बहुत ज्यादा उन्होंने सहा था और वो एंड करना चाहते थे ये सब चीजों का जो बेकार थी. क्या चीजों का एंड करना चाहते थे वो? अपार्थाइड की पॉलिसी. आप सिंपल में लिख सकते हैं, मैं आपको भेजा उससे भी सिंपल लिख सकते हैं. द एंड ऑफ अपार्थाइड पॉलिसी, discrimination in their country, end of discrimination, end of prejudice. That's why they sung collectively the both anthems of whites and blacks. Whites okay? and blacks. Simple रहो बिल्कुल. लेसन का पूरा समझ में आ जाएगा, फिर अपना खुद बनाना जाके. और जो है ना मैंने भेजा आपके पास इम्पोर्टेंट, इसका दोबारा उसको देख लो. जी सर. फिर जो लाइनें याद हो जाए फिर निशान लगाते रहो, फिर एक बार अपने अपने. ठीक है, खत्म करो इसको. कुछ नहीं है, तीन लेसन आएंगे आपके पास. अगर बीच में पेपर होगा ना तो 3 लेसन आएंगे, 3 या 4 मैक्सिमम 3 आएंगे. अभी जो मिड टर्म एग्जाम होगा ना 10वीं में, यस सर, 3 ही लेसन आएंगे. इसमें से 2 लेसन उसमें से आएंगे. तो सिलेबस तो आप अप्रैल में पूरा कर दोगे, नो टेंशन. दूसरे सब्जेक्ट को देखना. 2 लेसन तो हमने किए हैं डिस्कस इसके. अच्छा, आगे क्या बोलता है मंडेला? मंडेला कहता है कि नेल्सन मंडेला, ठीक है, नेल्सन आर मंडेला. तो ही सेड दैट इन हिज स्पीच ही प्लेज्ड, शपथ ली किसकी? बनाए रखने की. क्या बनाए रखने की? अपहोल्ड. क्या बनाए रखेगा? क्या चीज? प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ही प्लेज्ड टू अपहोल्ड, मतलब हम बनाए रखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया ऑल द सिटीजन्स आर इक्वल, either they are black or they are white, all are equal. तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ ली और मैं इसको बनाए रखूंगा इनकी बातों को. जो प्रिंसिपल्स जो उसमें लिखे हैं ना, सिद्धांत, प्रिंसिपल्स आर द सिद्धांत इन दैट कॉन्स्टिट्यूशन. और उसने क्या है, फ्रीडम को क्या बताया? ये बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया, मैंने आपके पास भेजा है, वीडियो में है. इंपॉर्टेंट बात ही वहां पे लिखी है, मैंने फालतू कुछ नहीं लिखा है. 10 लाइन होगी मैक्सिमम. यस सर. वीडियो के अंदर वही 10 लाइन है, आप एक बार देखना. उसने फ्रीडम किसको बोला? नेल्सन मंडेला ने. बहुत इंपॉर्टेंट बोला वो कि फ्रीडम हमें किससे लेना है? फ्रीडम हमें पॉवर्टी से लेना है, गरीबी से फ्रीडम. ठीक है, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि पढ़ क्यों रहे आप कि गरीबी से आजादी पाने के लिए. तो कहता है फ्रीडम किस चीज की चाहिए हमें? पॉवर्टी से फ्रीडम चाहिए. डेप्रीवेशन, डेप्रीवेशन, डेप्राइव्ड का मतलब होता है वंचित.
कोई व्यक्ति किसी सुविधा से वंचित ना रहे मेरे देश में। तो हमें आजादी किससे चाहिए? डेप्रिवेशन से, ठीक है। और इस ऑपरेशन मतलब किसी को दबाना, कोई किसी को दबाएगा नहीं यहाँ पर, ठीक है, कोई कुछ लेगा नहीं, ठीक है, चाहे वो किसी भी कलर का हो, किसी भी जाति का हो, ठीक है। इससे फ्रीडम चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन से फ्रीडम चाहिए। आप अपने में लिखते हैं ना, नेल्सन मंडेला said that on that day we all have to free from, इससे फ्री होना पड़ेगा, we all have to free from apartheid, we all have to free from discrimination, we all have to free from prejudice, we all have to free from poverty, we all have to free from deprivation, ठीक है। कितने वर्ड है, इनसे फ्री होना है हमें। आज हमारी आजादी का मतलब ये बोला उसने। तो आपके अगर 6-7 वर्ड में से 2-3 भी याद रह गए तो आपके क्वेश्चन आंसर को मजबूती मिल जाएगी, फिर आपको पूरे नंबर देगा, ठीक है। मंडेला ने और क्या बोला है, कुछ दिन उसने अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद भी किया है। ये बात मैंने नहीं लिखी आपके वहां पर, आपको तो लिखना चाहिए। अपने स्वतंत्रता सेनानी रिवोल्यूशनरी जो संघर्ष किए थे उन्होंने, ये नहीं लिखा मैंने। तो वो इम्पोर्टेंट बात क्या लिखी थी कि मंडेला कहता है अपनी स्पीच में कि हर आदमी जो है ना, हर आदमी की 2 बाध्यताएं होती है, ट्विन ऑब्लिगेशंस होती है, 2 बाध्यताएं। मान लो छोटा क्वेश्चन आ जाए कि मंडेला ने बोला कि व्हाट आर द 2 ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू मी, 2 बाध्यताएं क्या है? तो उसने बोला कि फर्स्ट ऑब्लिगेशन, पहली बाध्यता यह है कि हमें अपने वी शुड सर्व आवर फैमिली, एंड सेकेंड इज वी शुड सर्व आवर नेशन। तो ये 2 बाध्यताएं मंडेला ने बताई, परंतु कहता है कि हमारा जो ये नेगरो थे, तो ये अपनी बाध्यताएं थे, ये अपनी ड्यूटीज को पूरा नहीं कर पा रहे थे कोरों के नीचे, क्योंकि कोरे ना ही तो उनके परिवार का सम्मान करते थे, और दूसरा ना ही वो उनको वहां की सिटीजन समझते थे, तो देश के प्रति भी वो अपना ड्यूटी नहीं निभा पा रहे थे। इसलिए उसने जिक्र किया था मंडेला। कहता है हम तो दोनों से ही वंचित है, वी आर डेप्राइव्ड। डेप्राइव्ड का मतलब समझे आप, सुविधाएं अगर आपको ना मिले, आप भी तो ऐसे बच्चे हैं जिनको यू आर डिप्राइव्ड ऑफ द मैनी बेसिक नेसेसिटीज इन योर लाइफ। बेसिक नेसेसिटीज जैसे बच्चों को नहीं मिलती है, बेसिक नेसेसिटी जो आधार चाहिए आपको, ठीक है। तो आपको पैसे चाहिए एडमिशन लेने के लिए कहीं पर अच्छे स्कूल में, ठीक है। आपको क्या अच्छे जूते चप्पल चाहिए जाने के लिए कहीं पर, तो बेसिक नीड्स है, आप इनसे वंचित बहुत बच्चे होते हैं बच्चों के। तो लास्ट में 2-3 लाइन और क्या बोली उसने कि कहता है कि भाई साहस किसका नाम है, नेल्सन मंडेला बोलता है साहस किसे कहते हैं, कोरेज किसे कहते हैं। कोरेज किसे बोला उसने, कहता है कोरेज जो होता है ना, जो कोरेज का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर क्या है, फियर नहीं है। उसने बोला है absence of fear is not courage। कोरेज क्या, साहस क्या है? साहस क्या है? विजय प्राप्त करना है किस पर, डर पर। उसने बोला कि कोरेज इज द विक्ट्री ओवर व्हाट, फियर, ठीक है, नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, ठीक है। ये नहीं है कि डर नहीं है मतलब, परंतु डर को जीतना साहस है। ये लाइन बोली थी उसने वहां पर, स्पीच है पूरी, इसमें ऐसा कहते स्पीच दिया हुआ है, ठीक है। मैं कह रहा इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि हो सकता है छोटे आंसर आ जाए वहां पर डेफिनेशन के लिए, तो आप उसको बता पाए। और लास्ट में मंडेला कहता है कि जो लोग दूसरों का शोषण कर रहे हैं और जो लोग दूसरों के द्वारा शोषित किए जा रहे हैं, दोनों ही क्या है, दोनों को ही मैं बंदी मानता हूँ। बंदी का मतलब जो जेल में रहते हैं। क्यों बंदी माना दोनों को, प्रिजनर क्यों माना मंडेला ने, क्यों, किस चीज का बंदी माना? प्रिजनर का मतलब जेल में बंद रहना। कहते हैं ये दोनों ही एक तरह के बंदी है मेरे अनुसार। किस प्रकार है ये, बहुत अच्छी बात बोली उसने। कहते हैं जिसको दबाया गया है वो क्या है, वो किसका बंदी है, अन्याय का, ठीक है। वो उसके बोलने के अधिकार छीन लिए गए हैं, तो वो अन्याय का बंदी हो गया, उसके ऊपर अन्याय हो रहा है, ठीक है। और जो उनको दबा रहा है वो किस चीज का बंदी है, कहते हैं वो उस सोच का बंदी है, द थिंकिंग उसने बना रखी है इन लोगों के प्रति की मुझे क्या है, ये लोग क्या है मेरे से नीचे हैं, ये सोच, प्रिजुडाइज, कहते हैं ये प्रिजुडाइज के बंदी है,
ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेशन के बंदी है, समझे आप। जिनको दबाया है वो बंदी है किसके, कि उनको अधिकार नहीं मिल रहे हैं, उनका शोषण हो रहा है। और जो दबा रहे हैं कहता है वो भी गुलाम मानता हूं मैं, तो किस चीज के गुलाम है वो, कहता है उस सोच के गुलाम है जो उन्होंने दिमाग में बना रखी है कि ये लोग जो है ना ये छोटे लोग, नेल्सन मंडेला कहता है। तो ही वॉज ग्रेट लीडर, वर्ल्ड जानता है नेल्सन मंडेला को, क्योंकि नेल्सन मंडेला ने 30 इयर्स के करीब अपनी पूरी उम्र जेल में काटी, ठीक है, बोरो की जेल में उसको बंद रखा गया था, अंदर जवान गया था, बूढ़ा होकर बाहर आया नेल्सन मंडेला, सिर्फ इसी के लिए कि वो विरोध करा था। ओके, ही वॉज ग्रेट लीडर दैट टाइम। अब कहता है कि मंडेला कह रहे हैं कि भाई रियल फ्रीडम क्या है, बस यही है, सभी को अधिकार और सभी चाहिए, राइट टू इक्वलिटी, ऑल आर इक्वल अगेंस्ट, और कानून की नजरों में अगेंस्ट द, जो भी कानून बन रहा है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन है या ऑल पीपल हैव इक्वल फंडामेंटल राइट्स, ऑल आर इक्वल इन दिस नेशन। तो यही कहते हैं फ्रीडम है, ठीक है। ओके, आज इतने पढ़ेगा।